इंस्टेंटेनियस पावर पे पहुंचे। सो इंस्टेंटेनियस पावर that is power at any time, because since the power is variable, we want to find it at power at any time. So it is given by P and is the limiting value of the average power, P average. Now P average we have already denoted by delta W, work done by time T. Now what will be this? This will be this tending to 0. ठीक? So this is dW by D. So instantaneous power is differential quotient of work with respect to time. Now we also know that W is equal to F dot S, dot product of force into displacement. So if we substitute in this, let us say this is equation 1, then P will be equal to D by dt. We will substitute for W, we will substitute F dot S. So F dot S. Assuming that force is constant, we can take force outside this differential. So it will be d by dt of S. So what is ds by dt? Can anybody tell me? ds by dt, displacement by time. ds by dt, displacement by time. That is velocity. Okay. So power, instantaneous power is dot product between force and velocity. Instantaneous power P is dot product between force and velocity. Okay. Now from this we can derive units वगैरह जो हैं इसके वो हम करते हैं. ठीक. Now P we have derived F dot V, that is P is equal to F V cos of theta, because A dot B is equal to AB cos theta. Now if theta is equal to 0 degree, then cos 0 is equal to 1. Cos 0 is equal to 1. So then we will have maximum value of this, that is F. So maximum value of instantaneous power is product of force and velocity. Clear? Now if theta is 0, theta is 90, what will be instantaneous power? Instantaneous power will be 0, because cos 90 is equal to 0. ठीक? So जब ये 0 होगा, everything will be 0. That is the minimum value. उसका मतलब है अगर कोई काम, जैसे सपोज आपके पास एक बॉडी है, ये सपोज ये मेरे पास है, आप इसको यहाँ वर्क डन करना मतलब पुश करते हो, that is you are applying the force and you want to move it through some certain distance so that you can get the power. But since angle here is 90 degree, angle is 90 degree, ये 90 degree, so it will not move. But if I try, अगर मैं ऐसे करूँ 0, it will move. It will move. It will do the work, and the time for which this force acts will divide by the work done by force. Then we will get the power. ठीक? Now, so product of force and velocity is in a maximum value of instantaneous power. So general equation क्या है? P is equal to F dot V. Now what about dimensions? Dimensions of P will be equal to dimensions of power. क्या होता है? Dimensions of work divided by dimensions of time. और यहाँ इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, dimensions of force into dimensions of velocity. You can get dimensions from any, either you use this relation or this relation. What are the dimensions of velocity work? That are m1 L2 t minus 2, and here t has a dimension of 1, so it will be m1 L2 t minus 3.
ये इसकी डायमेंशन है। अगर इससे भी निकालना चाहते हो वो भी यही निकलेगी, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, l t-1. So if we add up, so it will be again m1 l2 t-. Whether you use this relation or this relation, the dimensions of power will be m1 l2 t-3. Clear? Yes, sir. Okay. Now units that we take only SI units. Okay. Now SI unit of power is called watt. Is called watt. We know that power is equal to W by T. If work done is equal to 1 joule, work done is equal to 1 joule, and that work is done in 1 second. T is equal to 1 second. Then if we substitute in this, we will get work के बदले में 1 joule divided by 1 second, or P is equal to 1 joule per second. That is called 1 watt. So joule per second is called 1 watt. So how we will define it? An agent which does a work of 1 joule in 1 second. 1 second. In 1 second. Then its power, it has power of 1 watt. ठीक है. Now there is another unit. इसका एक और यूनिट है किलोवाट. Kilowatt. That is bigger unit. That is 1000 watts. 1000 watt. Watts नहीं watt लिखते हैं. 1 kilowatt. Then there is power 3 watt. ठीक है. ठीक है. This is bigger unit. एक और आपने सुना होगा हॉर्स पावर. हॉर्स पावर सुना है कभी? जो बाइक्स, गाड़ियां वगैरह, उनमें कौन सा यूनिट लगता है? हॉर्स पावर. वो प्रैक्टिकल यूनिट. ये हॉर्स पावर क्या होता है? शुड आई रब इट? यस सर. हॉर्स पावर. हॉर्स पावर स्मॉल से हॉर्स पावर HP. वन हाउस. देखो असल में हॉर्स पावर कहां से स्टोरी आई. एक वेल है हमारे पास, ठीक, उसमें ये ग्राउंड लेवल है, ठीक, समझो इसमें एक पुली लगी है, यहां पर एक पुली लगी है बाहर इस स्टैंड पे, इस पे यहां से रस्सी है और नीचे वेट लगे इसमें, ठीक. ये रस्सी जाती है, एक हॉर्स यहां होता है उस पे लगी होती है, ठीक. जब ये हॉर्स इसको खींचेगा इस रस्सी को, ये जो वेट यहां लगा होगा ये कहां आएगा? ऊपर. हाँ. अब एक हॉर्स पावर को डिफाइन किया गया कि अगर एक हॉर्स 550 पाउंड, कितना? 550 पाउंड वेट अगर यहां लटका होगा, वो अगर लिफ्ट करेगा इस कुएं से फ्रॉम डेप्थ ऑफ कितना? 1 फुट ऊपर उठाएगा. यानी जब इसने खींचा इसको, अगर ये 1 फुट इस कुएं से ऊपर आ गया, ठीक, 1 फुट ऊपर आ गया, ठीक, यानी डिस्टेंस वेट ने कितना मूव किया? 1 फुट. ठीक. then we say that is equal to 1 horse power. बात समझ में आई? एक बोर्ड अगर वेट जो कुएं में है, अगर वो 550 पाउंड अगर 1 फुट ऊपर खींचेगा 1 सेकंड में, then we say that its power is 1 horse power. ठीक.
तो अब देखो ये कैसे हम निकालेंगे कैसे 1 हॉर्स पावर। देखिए कितना ये वेट निकलता है 550 पाउंड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 250 केजी। ठीक, मास कितना है 250। अब इसको जब जब ये नीचे से लाता है इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट कितना होगा इसका, अगर मास इसका 250 केजी है, वेट कितना होगा 250 इंटू जी, जी कितना है 9.8। 9.8 सो इंटू क्या करेंगे 9.8, तो इसको फोर्स खींचता है, तो उस फोर्स से ही खींचेगा। डिस्टेंस कितना निकालता है ये 1 फीट। 1 फीट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 0.305 मीटर। 1 फुट कितना होता है 0.305 मीटर। देखो ये हो गया फोर्स, ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गया ना वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क डन। टाइम कितना लगता है इसको, टाइम लगता है 1 सेकेंड। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज पावर विच इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं ये आता है 4746 वॉट अप्रोक्सीमेट। ठीक है, आपको 747 आए लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना है 746। ये समझ में आया हॉर्स पावर क्या होता है। Yes, sir. Horsepower is the weight lifted by a horse. That weight is equal to 250 kg, and distance through which a height depth from which it raises is 0.35 seconds in 1 second. Then that we say that horse has a power of 1 horse. Clear? दूसरा आपका commercial unit of energy. We know that देखिए power is equal to work divided by time, or P into T is equal to W. But work done is also equal to energy, और power into time, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम एनर्जी। एनर्जी अगर निकाले एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी एजेंट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो आपने ये 10th में पढ़ा होगा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट सिंपली पढ़ा है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट दैट इज BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या सिंपली इसको यूनिट, जो घर में बिजली आती है ना कहते हैं ना आपको कितने यूनिट्स हुए हैं कंज्यूम, तो ये यूनिट है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। वो कितना होता है 1 किलो वॉट आर। 1 सर साहिल बोल रहे हैं, मुझे अनम्यूट कीजिए। साहिल अभी मेरे पास नहीं है, अभी 1 मिनट करो, मैं उसको करूंगा, ठीक है ना। 1 किलो वॉट आर, 1 किलो वॉट आर क्या होता है 1 किलो मीन्स 1000, ठीक है ना, 1000 वॉट। ठीक, आर, आर कितना होता है 3600 सेकेंड, ये हो गया 10⁻³ वॉट क्या होता है जूल पर सेकेंड इंटू 3600, दैट इज, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इट कम्स आउट टू बी 36000, 3 and 2 500 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड कैंसल, दैट विल बी जूल, और इट कैन बी रिटन इन साइंटिफिक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट 3.6 into 10⁻⁶ joule. That's the relation between 1 kilowatt hour and joule. So a body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed v in time capital T. Calculate the instantaneous
माइक को जिसका शोर हो रहा है वो माइक म्यूट कर ले। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ूं। A body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed v in time t. Calculate the instantaneous power delivered to the body in time small t. ठीक है, इसका हमें सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉडी ऑफ मास m इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली। सो विच थिंग विल एक्सीलरेट, कौन चीज एक्सीलरेट करता है किसी चीज को? फोर्स। जब फोर्स लगाए तभी एक्सीलरेट होगा। फ्रॉम रेस्ट, कहां से आती है? रेस्ट से स्टार्ट होती है। टू अ स्पीड, तो कहां पहुंची उसकी फाइनल वेलोसिटी? v पर। इन टाइम कितना लगता है? t। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस। तो हमें पहले क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस पावर। वी नो दैट इंस्टेंटेनियस पावर p किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ए क्या चाहिए हमें? फोर्स और चाहिए वेलोसिटी। तो पहले कंडीशन क्या दी? अ बॉडी ऑफ मास m इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्म फ्रॉम रेस्ट। सो u आपका क्या है इधर? 0 स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड v। तो जो आपका वेलोसिटी है v वो कितनी है? स्मॉल v बन जाती है। इन टाइम कितना है? कैपिटल T। तो व्हाट विल गेट फ्रॉम दीज थिंग्स? v u t, वी कैन गेट एक्सीलरेशन बाय यूजिंग u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। ना v कितना आपका? स्मॉल v। u कितना है? 0। a हमें निकाल यूनिफॉर्म, सो दिस एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। एंड t स्मॉल t कितना है पहले केस में? t। सो एक्सीलरेशन कितना आएगा? इट विल बी v बाई t, नंबर 1। सो व्हाट विल बी फोर्स? मास तो दिया है m, फोर्स एक्टिंग विल बी ma, और फोर्स विल बी, वी विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज v बाई t। ठीक, ये लेट अस से दिस इक्वेशन। नाउ पार्ट सेकंड कहता है, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी इन टाइम t। अब इस स्मॉल t में कितना पावर डिलीवर होगा? ठीक, वी नो दैट पावर कितना होता है। पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी। यहां की वेलोसिटी हमने निकाली। लेट सपोज दैट द वेलोसिटी एट टाइम्स दिस स्मॉल t विल बी v डैश। देन वी नो दैट द बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, सो इट इज इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 प्लस एक्सीलरेशन ए अभी हमने निकाला। एक्सीलरेशन कितना निकाला हमने? एक्सीलरेशन कितना निकाला? v इक्वल टू प्लस a की। एक्सीलरेशन कितना? ये आपका क्या है? v बाई टी। यस, सो v बाई व्हाट t? कैपिटल टी। लेकिन यहां पर टाइम क्या है? कैपिटल टी या स्मॉल टी? सेकंड केस में कैलकुलेट अवेली स्मॉल। सो आपकी v डैश निकली v बाई दैट्स दिस v बाई t। ठीक, नाउ व्हाट विल बी द पावर? पावर विल बी फोर्स, that is m v by t into velocity. Velocity will be v t into t. So that will be equal to, जब हम कैलकुलेट करेंगे, it will be equal to p will be equal to m v square by t square। ये इसमें आया था, जेई मेंस में आया था। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ लास्ट है इस यूनिट 5 की एक और न्यूमेरिकल। ये मैं पढ़ता हूं, इसको पढ़ने की जरूरत, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको आना चाहिए। ये भी जेई बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये कहता है अ स्फेरिकल बॉल ऑफ, मैं आप अगर आप लिखो जो मैं जबानी बताता हूं, ठीक है ना? अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg, a spherical ball of mass 20 kg at top of a hill of height
100 मीटर। ये एक हिल है, there is a ball lying on it. This hill has a height, let us say h1 equal to 100. It slides down a smooth surface to the ground and then climbs another hill. Now this ball moves down and then moves on a smooth surface and then climbs another hill 30 मीटर। ये कितना है? ये जो हिल है, दिस इज 30 मीटर टॉल, यहां 30 मीटर। तो ये बॉल यहां पर पहुंचती एंड फाइनली स्लाइड्स डाउन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन इट अगेन कम, जब यहां पर पहुंचते फिर यहां नीचे चली जाती है, यहां से आके ऐसे इस डायरेक्शन में, एंड slides down to a horizontal base at a height of 20 मीटर above the ground। अब ऐसे चल के फिर यहां फिर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ये थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं, इसकी कितनी है? 30 मीटर इसकी हाइट। तो जब ये बॉल आती है तो यहां पर चढ़ के यहां पहुंच जाती है। ये कितना है? 20 मीटर। इसको मैं मानता हूं h2। ठीक है, ये कहता है द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल इज, ये कहता है कि फाइनली जो वेलोसिटी जो होगी वो बॉल की क्या होगी। कोई बता सकता है? ये किस चीज, ये कौन सा है यहां पर? यहां कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? देखो फिर से मैं क्वेश्चन बताता हूं। A ball is resting on the top of a mountain or a hill of 100 feet high. Now this ball rolls down the hill and moves through a smooth surface. Since it has got the kinetic energy, rises up in this direction and reaches at the top of this point. After that, it again falls down and moves a bit and rises to a flat plateau which is 20 meter high. Now what is the question is the velocity attained by the body. जब ये यहां नीचे आएगा फिर यहां पर कौन सी वेलोसिटी इसको अटेन होगी? कोई बता सकता है मुझे? शहीम, तारिक, शहीम जी सर। बता सकता है कोई? कोई आवाज तो दो। देखो यहां पर कौन सी एनर्जी है यहां पर बॉडी में, पोटेंशियल या काइनेटिक? यहां जो टॉप पे पहले पोटेंशियल, काइनेटिक नहीं, बिकॉज यहां रेस्ट कर रही है। सो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh1, मिसाल के तौर पर h1 लिया, मास बॉल का m है। अब यहां के फिर नीचे पहुंचती है, तो जब यहां पहुंचती है यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहां तो रुकती नहीं, ये तो हमें इंटरमीडिएट है, ये हमें देखना नहीं। यहां पर पहुंची ना, यहां क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि हाइट पे है, रुक गई है यहां पर, यहां पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इसका यही बॉल है ना, m g, लेट अस से दिस इज h2। ठीक, नाउ जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है इसकी कि नहीं चेंज होती? हाँ चेंज होती है, mgh1 टू mgh2। सो व्हाट विल बी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी? mgh1 माइनस mgh2। नाउ जो चेंज होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? देखो, वेरी गुड, एक बॉल यहां पर है, अब जब ये नीचे आती तो यहां पर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, मिसाल के तौर पर ये ग्राउंड है, यहां कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिसाल के तौर पर 10, अब ये नीचे आ गई, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिसाल के तौर पर 8 रही, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यहां पर कितना होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो बात समझ में आई? सो डिफरेंस अगर मैं निकालूं 10 माइनस 8, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, इनकी डिफरेंस जो निकालो वो क्या चेंज होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आई? एज्यूम दैट इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v यहां, सो इट विल बी 1/2 mv²। ठीक है, m को कॉमन निकालो, ये क्या बनेगा? g को भी कॉमन निकालो, g इंटू h1 माइनस h2 विच विल बी इक्वल टू m, तो कैंसिल हो गया, 1/2 v²।
जी कितना है 10 है ना, अप्रोक्सीमेटली वी टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। H1 कितना है 100 माइनस H2 कितना है 20, ये इंटू 2 1/2 v स्क्वायर। अब 2 को इस साइड में ले जाओ, ये बनेगा, ये कितना बनेगा 180 20 इंटू 80, ये बनेगा 80, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बी 20 v स्क्वायर। So v will be equal to under root of 20 into 80. So v will be equal to 2 8s are 16. That will be 40. Is it clear? Okay. अभी ऐसे रो I want थोड़ा रिपीट। हाँ, क्वेश्चन कहता था a ball is at a hill of 100 feet high, ठीक, at its top. Now this ball rolls down the hill and moves. Since it has got the kinetic energy, it raises up to a mountain, this hill of 30 meter high. Then it again rolls down and finally raises to a height of 20 meter. 20 meter this hill जो भी है. Now he asks what is the velocity attained by the body. जब ये यहाँ होगा ना, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि नीचे आके यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी और मोमेंटम से ये आगे यहाँ तक बढ़ेगा और यहाँ पर रेस्ट पे आ जाए। बात समझ में आई? अब असल में ये बीच वाला छोड़ दो, पोटेंशियल यहाँ पर ये था, ये मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ यही पर बनाता हूँ। पहले थी ये 100 फीट पे थी ना, यहां से यहाँ कितना है, लेट अस से 100, तो ये बॉल यहां पर थी। अब नीचे आके कहां आ गई, फाइनली हाइट क्या है इसकी 20 मीटर। बात समझ में आई? तो जब ये बॉल यहां से चलेगी, तो जब ये नीचे आएगी तो यहां पर होगी ना उसकी वेलोसिटी, होगी ना कुछ, जब ये नीचे आ, मैं समझा रहा हूं इसे। तो ये कहता भाई यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या, नॉट एट दिस पॉइंट, एक्चुअली व्हेन इट्स एट हियर इट विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड देन इट विल राइज टू 20 मीटर। यही वेलोसिटी कहता है, क्योंकि हमने लाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द चेंज इन द पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द, कौन सी वो है ना वर्क एनर्जी थ्योरम,